So moving to the first topic of your 12th class, and the first topic is composition of two functions. दो या दो से ज्यादा functions का composition. तो देखिए composition को how do we understand? We say that two functions f and g are given, then f of g of x, जिसको कि हम लोग fog कहते हैं, या g of f of x, जिसे कि हम लोग gof कहते हैं. So here f is missing, so it's like g of f of x are called composition of functions. मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. हमने कहा f of x है आपका यहाँ पे sin of x minus 3 and g of x is nothing but 3x plus 4. ठीक है. Now if I ask you that how much will be or rather what will be your f of g of x, so देखिए f of g of x. Now what does that mean? That simply mean that here in the function f of x, this is the input. So g of x is input of f here. ये जो फंक्शन, जो बाहर वाला फंक्शन है, उसका इनपुट यहाँ पे x की जगह g of x है. तो to find composition c is going to be very 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 simple for us. हाँ, अगर यही क्वेश्चन आपका दूसरे फॉर्मेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो it is always considered to be a very good question there. But the way we are going to discuss here, the amount of discussion or the amount of thing we have to discuss here is a very simple thing. तो यहाँ पे जो डिस्कशन है वो बहुत ही सीधा सरल सा है. कोई कंडीशन हम यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं. कब क्या हो सकता है ये यहाँ पे कहीं डिस्कशन का पार्ट नहीं है. तो यहाँ पे अगर आप समझ रहे हैं कंपोजिशन निकालना तो आप समझ जाएंगे कि कितना सरल है. बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट्स नॉट दैट इजी. ठीक है. तो वो फिर वही बात है, जब आप लोग किसी भी जगह या हम लोग के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, यू विल फाइंड दैट देयर इज लॉट मोर हियर. बहुत कुछ और भी है यहाँ पे. बट चलिए अभी हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने CBSE वाले करिकुलम में. वहां पे देखिए होता क्या है कि ये f of x में आपको इनपुट x की जगह ये g रख देना. अब देखिए इसको समझने का तरीका ये है. फॉर एग्जांपल आपका f of x है साइन ऑफ हाउ मच इज इट x minus 3. अब आप ये बताएं कि इफ आई आस्क यू पीपल टू टेल मी f of t, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कोई इसमें क्या प्रॉब्लम है, x की जगह t रख दिया. इफ आई आस्क यू पीपल टू टेल मी f of z, you will say again, you will say is what's the problem here? It is simply z minus 3. So similarly, if I ask you to tell me f of g of x, so there shouldn't be any problem. आप जो अंदर इनपुट है ना f का, उसे आप t मान ले बच्चों. तो अगर आप इसे t मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हमें पता है दिस इज sin t minus 3. अब t कुछ भी हो वो रख दीजिए. तो sin ऑफ t यहाँ पे g of x है, तो साइन ऑफ g of x minus 3. अब आप यहाँ पे g of x रख दीजिए तो ये आ जाता है f of g of x. तो कितना आ जाएगा? साइन ऑफ g की जगह आप यहाँ पे रख देंगे. सो दिस इज 3x plus 4 और ये आ गया -3. सो दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ 3x plus 1. सो दैट वाज अ स्मॉल question based on composition of two functions. There is an example in front of you for the same, like we have to find both here. We have to find f of g of x, we have to find g of f of x. So now let us continue with this example. तो देखिए ये example आपका ये है, given that our f of x is, how much is it? It's x square minus 2x plus 1. And g of x is, so again how much is it? So it's x minus 3. अब देखिए the first thing we need to get here is we have to get f of g of x, fog या f of g of x. O stands for off बच्चों. ठीक है. तो fog या gof जो हम लोग बोलते हैं वहां पे जो O है वो off है, f of g of x या g of f of x. ठीक है. अब फिर से so this imply, देखिए फिर से हम आपसे वही कहेंगे f of t कितना? तो f of t is t square minus 2t plus 1. So therefore f of g of x कितना? So you assume g of x as t here. So simple. तो फिर आप t की जगह g of x रख देंगे. So it's g of x whole square minus 2 times g of x plus 1.
Now simply put the value of g of x. So how much is it? So it's x minus 3 whole square minus 2 times x minus 3 plus 1. Now if you wish we can obviously simplify it. तो अब आपको f of g of x मिल जाना है. तो कितना हो जाएगा? तो x स्क्वायर का टर्म और कहीं है नहीं, तो ये तो x स्क्वायर ही हो गया, माइनस 6x एंड माइनस 2x, तो ये हो गया माइनस 8x, एंड देन दिस इज प्लस 9 and plus 1 plus 10 and plus 6, so it's plus 16. So that's your f of g of x. Now similarly we can try to get g of f of x. So g of f of x. Now how much is g of t? So it's t minus 3, simple. So this implies g of f of x. So obviously we will be treating our f of x as t here. जो हमारा f of x है वो हमारे लिए t है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा f of x minus 3. So that is f of x is x square minus 2x plus 1 minus 3. So ultimately this is x square minus 2x minus 2. So that's our g of f of x here. ठीक है बच्चों, तो ये इतना ही सीधा सरल है आपके एनसीईआरटी के कोर्स के लिए, या बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी यहाँ पे बोर्ड हो, इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर एनसीईआरटी, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिस्कस किया जाएगा वो इससे ज़्यादा का नहीं है. बट अगेन अ राइडर हियर, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू पॉइंट से जब आके देखेंगे तो यू शुडंट बी लाइक कि इतना ही है, बहुत कुछ और भी वहाँ डिस्कस होता है. ठीक है, सो दैट वी विल सी लेटर समवेयर, बट अभी के लिए इतना ही है ये बच्चों. सो दैट वाज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर 12th क्लास रिलेटेड टू फंक्शन. Now let's move ahead to the last and but the very major part of this of your chapter, टाइप्स ऑफ फंक्शन. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, लाइक डेफिनेशन बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज देयर. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हियर.